Good morning, student. I am Rajendra Simuri, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcome to all of you in this online session of the class 8 mathematics. And today we will learn about some glimpse of the whatever we discussed into the live session as well as into the video lecture. So at the last live lectures, we discussed about the three different pattern or properties of the square numbers, and among them we will learn about the three rules for the distributive properties. We have to using the last one, that is the Pythagorean triplet. So all these three rules, it will be applicable whenever it required. If we can't be able to do in the big numbers of that square, that time we are using either the distributive properties or the Pythagorean triplet, and third one properties are there. So today we just check it out the daily reviews regarding the practice question 2.1 to 2.4. Just we have to check it out. First one, the practice question 2.1 is given, so you can also write down this practice question 2.1 in your fair book also, and that things you have to send me as a today's homework. So first one is that which of the following is not a perfect square or why. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और है कि नहीं मतलब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, that's why it asking the question why. So here first one is 361, second one 1156, third one is 1128, and D is having the 1681. Because of, we all know that the perfect square has the unique properties or rule that is given here. So perfect square have 0, 1, 4, 5, 6 और 9 in the ones place. ones के place पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, वहाँ 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4, 5, 6 और 9. यदि ones के place पे here given any digit 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इसमें से कोई 1 के place पे कोई digit है तो वो सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यदि नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो आप देख सकते हो कि 361 वंस के प्लेस पे 1 है, तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 1156 दैट इज इन द वंस प्लेस, दैट इज 6, सो दैट इज ऑल्सो भी परफेक्ट स्क्वायर. 1128 बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हो कि इस डिजिट में से लास्ट वन डिजिट 1128 में 8 है, so that is not a part of perfect square. So third one is not considered here the perfect square. Again 1684, that is the option number D, that is also be perfect square क्योंकि वंस प्लेस पे डिजिट है वो 1 है. तो आप देख सकते हो कि यदि लास्ट डिजिट मतलब कि वंस के प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, वो सभी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं. यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब 1128 हैज 8 इन द वंस प्लेस, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. समझ में आ गया. सो दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1. नाउ फॉर द गो फॉर द 2.2. The square of a number ending with 9 will end with, here also one of the properties of that, जो भी स्क्वायर नंबर 9 से एंड होता है वो दूसरे कौन से नंबर से भी एंड हो सकता है. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 9 विल एंड विथ 1, तो दैट इज द आंसर ऑफ इट. क्योंकि यहाँ आपको पूछा गया था, ऑप्शन में 1 है, 3 है, 6 और 9 है, तो ऑब्वियसली जो स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 9 से होता है विल एंड विथ ऑल्सो बी 1, 1 से भी हो सकता है. तो 1 और 9 से एंड होने वाला, that is also be considered as a square number. So that is the question number 2.2. Now 2.3. There are blank perfect squares between 1 and 15. 1 and 15 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है. तो पहला 1 है, 4, 9, 16, 25, 36 and 49. So there are 7 perfect square between 1 and 15. So answer will be 7.
Similar way for the 2.4, how many square meters of carpet will be required to cover a square room of side 6.5 मीटर। तो अब एक स्क्वायर आपको बताया गया, वो स्क्वायर की पोजीशन आप देखें तो इसमें साइड एक दी गई है, कितनी है 6.5 मीटर, सॉरी। सो 6.5 मीटर की एक साइड आपको गिवन है। तो एरिया जब हम उसको फाइंड करेंगे ना कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर रूम, ये पूरा एक रूम है, ये रूम को कवर करने के लिए हमें कितनी कारपेट चाहिए, मतलब हमें अंदर का पार्ट फाइंड करना है, इंटरनल पार्ट फाइंड करना है, मतलब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का इक्वेशन होता है साइड इनटू साइड। एरिया का इक्वेशन क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो एक साइड हमें गिवन है वो है 6.5, तो दूसरी साइड भी 6.5 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। ये सभी साइड कैसी होती है, स्क्वायर उसी को बोलते हैं कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो एक साइड का हमें मेजरमेंट दिया गया है, तो चारों साइड का मेजरमेंट एक ही होगा। सो 6.5 इंटू 6.5, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का इक्वेशन है साइड इंटू साइड। तो 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42.25 स्क्वायर मीटर। So total we have to using 42.25 square meter of the carpet will be required to cover a square room with a side of 6.5 meter. Is it clear? So that is the question number 2.4. अब थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के, आप उसमें उसको ऐड कर सकते हो आपके एक्सरसाइज के बाद। ये एनसीईआरटी के ट्राई दिस पेज नंबर 97 का क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन द यूनिट प्लेस। जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसी का आप स्क्वायर निकालो। मतलब हमें पता है कि उसके लिए हमने लास्ट लाइव सेशन में सेकंड रूल देखा था कि जब भी यूनिट प्लेस के ऊपर 5 होता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। आज उसके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और यही चीज़ आप अपने फेयरबुक में भी लिख लो और वही चीज़ आज के होमवर्क में भी मुझे भेजना है, याद रखो। ओके, सो 15 का हमें स्क्वायर निकालना है फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हम 1 इंटू 2, मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स है 1 इंटू 200 प्लस 25। ऑब्वियसली दैट इज ए 200 प्लस 25 हुआ। तो हमारे पास हम आपको याद है उस रूल में मैंने सिखाया था, आपको क्या सिखाया था, अब आपको याद रह गया होगा कि सीधा 5 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे हमने लास्ट टाइम किया था लाइव सेशन में, आपको याद हो तो 15 है आपके पास, तो पहले 5 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, आगे बचा 1, तो 1 जो बचा है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होता है 2, तो वो 2 यहाँ आप सीधा ले सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 225। सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर द सेकंड वन, 95 का स्क्वायर है। तो 95 का स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे, पहले तो 25 लिख ही लेंगे, फिर आप 9 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 9 के बाद क्या होता है 2, 9 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है 10 होता है ना, तो 10 सीधा रख दो यहाँ पे, एक ऐड कर दो। जैसे कि 1 के अंदर एक ऐड किया तो 2 हुआ था पहले क्वेश्चन में, तो 225 हो गया था। वैसे ही 9 के अंदर एक ऐड करने से क्या हो जाएगा 10, सो 1025, दैट इज द आंसर ऑफ इट। अब एक 10 जो आया उसको क्योंकि हमारे पास 9 है, तो 9 इंटू 10 हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा 90, तो हमारा आंसर फाइनली क्या रहेगा 925। तो इस तरीके से जो मैंने लास्ट लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद जिसके वंस के प्लेस के ऊपर 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे सभी के आंसर आपको गिवन है। तो इज इट क्लियर फॉर दैट?
So that is page number 97. You have to use it. So this all the questions just you have to perform today into today's homework. तो आज जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के प्रॉब्लम जो सॉल्व किए वो और ये एनसीईआरटी ये सभी सब कुछ आपको फेयर बुक में ही लिख लेना है और ये सब ही आज के होमवर्क में सेंड करना है. इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्क्वायर नंबर से अब दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं. सेकंड टॉपिक दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. अभी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो. अब तक हम जो फाइंड कर रहे थे वो स्क्वायर था. अब हमें स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं. जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. दिस इज द अनदर वन कंसेप्ट हियर. यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक. सप्लीमेंट्री बुक में भी आप देख सकते हो how to find the square root of a number. So let us move on it. Perfect square numbers हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि we know that any number multiplied by itself, जो नंबर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं. और उसके लिए हमने पूरी चीज यहाँ पे देखी थी. होल नंबर्स 1 to 10 का कंसिडरेशन हम करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें. ऐसे आप देख सकते हो कि 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1. अब पूरी एक ग्रीन लाइन देख सकते हो ना. तो वो हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा. देखो आप होल नंबर कॉलम में भी देखिए और होल नंबर रो में देखिए तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4. ऐसे 1 इंटू 1 1 होता है. 2 इंटू 2 4 होता है. 3 इंटू 3 9 होता है. पूरी ग्रीन लाइन और क्रॉस में आप देखिए तो ऊपर 4 और नीचे 4. यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4. ये दोनों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 25 36 49 ऐसे 10 तक हमने पूरा द नंबर्स 1 4 9 16 25 आर ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जो परफेक्ट नंबर होता है वो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये हुआ था. हम ऑलरेडी ये सब कुछ we have to learn earlier into the classes of previous. So everybody knows how to find out the perfect square number. So 1 4 9 16 25 36 49 ये सब क्या है perfect square. Similar way we are using the perfect square numbers. Find the area of a square whose side is of length 4 centimeter. So 4 into 4 कितना होता है. क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर अभी हमने एक एग्जांपल से देखा. सो दैट इज साइड इनटू साइड है तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर दैट विल बी अ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर नंबर्स ओवर हियर. तो अभी हम जो चीज कर रहे हैं कि दो साइड्स हमें दी गई है तो उसका स्क्वायर नंबर क्या आया 16. क्योंकि 4 इंटू 4 हम करते हैं इसीलिए. So can you find the length of the side of the square if it is area is given. अब area given है तो हम side find कर सकते हैं. Obviously उसकी length find कर सकते हैं. Obviously find the length of the side of the square whose area is 25 centimeter square. तो कैसे करेंगे. हमें बताया गया है. अभी तक तो हम क्या करते थे कि साइड दी गई थी और एरिया फाइंड करते थे. 4 इंटू 4 यानी 60. अब हमें क्या दिया गया है एरिया दिया गया है और हम साइड फाइंड करेंगे. कैसे. अभी हमको एरिया गिवन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया कितना है हमारा पूरे स्क्वायर का 25 सेंटीमीटर. So now we know that 25 is a perfect square number which means that we get 25 when a number is multiplied by itself. So which number it could be. अभी ये तो 25 है तो हमें माइंड में भी पता चल जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो 25 लाने के लिए हमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑब्वियसली 5. 5 इंटू 5 25 होता है. सो 25 लाने के लिए हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हमारे पास 25 आएगा. तो 5 इज अ साइड. ऑब्वियसली we get 25 when a number is multiplied by itself. 5 centimeter by 5 centimeter, that's why 25 centimeter. So the number that is multiplied by itself to give 25 is 5. कौन से नंबर्स
को इटसेल्फ यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 मिलता है. So the length of the side of the square is 5 centimeter. So can you find the connection between these two cases? 4 into 4 that is 16, 25 that is 5. ये दोनों केस अभी हमने डिस्क्लोज किए. तो इसमें कुछ भी चीज ऐसी है, ऐसा कनेक्शन आपको दिखता है कि ये दोनों में क्या कनेक्शन है. कैन यू जस्ट इमेजिनेट दैट 4 into 4 16 होता है और 25 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर हो गए. तो इस दोनों में कनेक्शन क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन. फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ टू फाइंड द स्क्वायर नंबर. कभी भी हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए उसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दूसरी चीज, वी हैड ए स्क्वायर नंबर, जो अभी हमारे पास स्क्वायर नंबर है 25, एंड वर्क बैकवर्ड टू फाइंड सिमिलर फैक्टर. हमें क्या करना पड़ेगा? उसके फैक्टर में जाना पड़ेगा. सो वर्क बैकवर्ड टू इट्स सिमिलर फैक्टर, मतलब 25 का एक फैक्टर है 5. तो एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है. दूसरी चीज इसमें क्या है? मेन चीजेस जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो स्क्वायर रूट का. द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गिव द स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट. फिर से मैं बोल रहा हूं, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जब दो नंबर्स एक दूसरे के साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाइड होता है, देन इट गिव्स द स्क्वायर नंबर. तब वो स्क्वायर नंबर देता है, वो नंबर को स्क्वायर रूट बोलते हैं. द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर से n इज रिटर्न एज अंडर रूट n. मतलब हम कैसे लिखते हैं उसको? n. इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट. तो आप देख सकते हैं कि 4 into 4 is equal to 16 सेंटीमीटर. So we know that 16 is a square number. आप देख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आपको मिला वो 16 सेंटीमीटर है. वो 16 इज a स्क्वायर नंबर. तो 16 कैसे बनता है? 4 into 4 से. अब 4 into 4 से बनता है, so we get 16 when we multiply 4 by itself. 4 by 4 करने से 16 मिलता है. Hence 4 is the square root of 16. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का 4 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर नंबर जो होता है 4 into 4 वो 16 होता है. तो 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. अंडर रूट 16 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 into 4. किसमें लिखते हैं? अंडर रूट 16 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अंडर रूट 4 into 4. अब जब दो अंडर रूट में 4 into 4 है तो अंडर रूट निकल जाता है, क्योंकि सेम पेयर है 4 into 4. तो अंडर रूट निकल गया तो अंडर रूट 16 का आंसर क्या आया? 4. सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. अब आप देख सकते हो व्हाट कुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 9, 16, 25 एंड 36. आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर रूट. 4 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा और 25 का 5 होगा और 36 का 6 होगा. दैट इज ऑल आर द स्क्वायर रूट. कैसे? लाइक दैट वे. अंडर रूट 4, 2 into 2 4 होता है तो अंडर रूट 4 का क्या होगा? 2. 3 into 3 9 होता है तो अंडर रूट 9 का क्या होगा? 3. अंडर रूट 16 का क्या होगा? 4. अंडर रूट 25 का क्या होगा? 5. एंड अंडर रूट 36 का क्या होगा? 6. तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4. So did you notice that under root 4, that is under root 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. ऑब्वियसली 2 हुआ. अंडर रूट 9 मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज ऑब्वियसली 3 हुआ. एंड सो ऑन. ऐसे ही हमको याद रखना है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आर इनवर्स ऑपरेशन, दोनों इनवर्स ऑपरेशन. तो अंडर रूट 4 है तो 2 होता है और 2 into 2 दैट इज 4 होता है.
तो ये दोनों कैसे ऑपरेशन है? इनवर्स ऑपरेशन. So that's why we know the square of a given number can be found by multiplying the given number by itself, by repeating addition, repeated addition, and so it inverse, which is the square root, can be founded by repeated subtraction. रिपीटेड एडिशन करने से आपको मिलता है स्क्वायर नंबर और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने से आपको मिलता है स्क्वायर रूट. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू. नेक्स्ट वन, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आप देख सकते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर. For example, the sum of the first 5 consecutive odd numbers is the square of 5, which is 25. So 1, 3, 5, 7, 9. These all are the 5 odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. ये सभी का टोटल जो होता है वो कितना होता है? 25 होता है. अब not that 1, 3, 5, 7, 9 is equal to 25. So we have added 5 successive odd number to reach 25. हमें 25 तक पहुंचने के लिए पहले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन करना पड़ता है. एडिशन किया तो हमें 25 तक पहुंच जाते. वैसे ही इफ वी डू द ऑपोजिट, एग्जैक्टली द ऑपोजिट इनटू द स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर के लिए हमें सभी का एडिशन करना पड़ता था, अब उसका ऑपोजिट हम करेंगे. वी स्टार्ट्स विद द स्क्वायर नंबर एंड कंसेक्यूटिवली सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर टिल वी गेट 0. तो 25 में से हम पहले यूज करेंगे पहला ऑड नंबर 1. 25 में से एक गया तो 24 आता है. 24 में से 3 गया तो कितना आता है? 21 आता है. 21 में से 5 गया तो वी गेट 15 एंड उसमें से 7 गया तो कितना होता है? 16. और 16 में से 7 गया तो 9 आता है. और 9 में से वी हैव टू यूज 9. 9 माइनस 9 हमारे पास क्या आता है? 0. So let us see how to do this. So since there are 5 steps for successive subtraction from 25, we can say that under root 25 है वो 5 स्टेप से हमें रिकवर्ड होता है. सो इसका अंडर रूट 5 होगा. ऐसे भी हम याद रख सकते हैं. आप देख सकते हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से आप स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5. तो वी कीप एडिंग सक्सेसिव ऑड नंबर टिल यू रीच 25. सभी नंबर्स का एडिशन करेंगे तो आप स्क्वायर नंबर पे पहुंच जाएंगे. जैसे कि 1, 3, 5, 7, 8, 7 एंड 9. ये सभी का टोटल करेंगे तो 25 तक पहुंच जाएंगे. और if we want to find out the under root 25, then we subtract all the sequence of the odd number. So finding the square root of a number, starting with the square number, keep subtracting successive odd number till you reach 0. The number of steps is the square root. आप देख सकते हो इसमें कितने स्टेप्स है? 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. तो स्टेप ही गिन लेना है. समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीज अच्छी तरह से आप याद रखो. So that is the final finding. The summaries is that for here the finding the square root of a number using the successive subtraction method can be lengthy and time consuming. When there are large numbers, we can use the other methods to find that square number. हम और भी स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए मेथड यूज कर सकते हैं. बट अभी जो भी यूज किया है दैट यू हैव टू लर्न वेल. तो टिल दिस पॉइंट whatever the mention the homework, फिर से मैं होमवर्क को मेंशन कर देता हूँ कि आज जो भी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और देन आफ्टर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो सभी आपको फेयरबुक में ही लिखना है और ये फेयरबुक का ही फोटोग्राफ्स आज होमवर्क में सेंड करना है. और आज जो हमने नई चीज़ सीखी वो है हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. वो लर्न करना है इस वीडियो में से भी और अपनी सप्लीमेंट्री बुक में से. I hope that everyone is fine at your home and you work hard for that. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.